किया था ना। ओके वैभवी, कोई मेरे को गाइड करेगा क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। लिखिए बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट, बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट। द मुस्लिम लीग्स, द मुस्लिम लीग्स एनुअल सेशन of 1918, Muslim League's annual session of 1918, which was held, annual sessions of 1918, which was held, मैंने आपको डिक्टेट कराया था मुस्लिम लीग का 1918 का कहाँ सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था? एनीबडी? which was held in Delhi, which was held in Delhi under the presidentship of Fazlul Haq, under the presidentship of Fazlul Haq, Fazlul Haq, Fazl ul Haq, Fazl dash ul dash Haq, Fazlul Haq, Fazl ul Haq. M.A. Ansari demanded the restoration of Arab lands to the Caliph. M.A. Ansari demanded the restoration of Arab lands to the Caliph. Arab lands to the Caliph. ये नहीं ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आता, ये ओटोमन एम्पायर टर्की के अंडर आता था भाई, ओटोमन खुद एक एम्पायर था सर। हाँ टू द कैलिफ, ये आपको, आप उस दिन आए थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बल्कि डायग्राम भी दिखाया था। याद आ गया? ओके जो आपके टर्की का जो था, टर्की का एम्पायर जो था वो पूरा आपके ग्रीस से लेकर के पूरा आपके ये पूरा सऊदी अरेबिया और पूरा अरेबियन पेनिनसुला था। ओके ये याद रहेगा ना? ओके लिखे भारत में कितनी रामसर साइट्स हो गई है टोटल? लास्ट कहाँ की जोड़ी गई है? बिहार, बिहार। करंट अफेयर्स देखते जाना गाइस, ओके करंट अफेयर्स देखते जाना, ठीक चीजें। दो साइट्स जोड़ी गई हैं टोटल, भारत में रामसर साइट्स 82 हो गई है। ओके लिख लीजिए क्लास। द कांग्रेस अंडर गांधी जी, द कांग्रेस अंडर गांधी जी सपोर्टेड supported the demand of Muslim League, supported the demand of Muslim League the Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, the Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali in their newspaper Comrade, in their newspaper Comrade, न्यूज़पेपर कॉमरेड। अब ये सब प्रीलिम्स है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन देयर न्यूज़पेपर कॉमरेड, कॉमरेड COMRADE, कॉमरेड सपोर्टेड द टर्की
and their Islamic rituals, and their Islamic rituals. Turkey and their Islamic rituals. Just चिंता ना करो, जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम्हारे लिए भी काजू कतली का पूरा 1 किलो का डब्बा ही आएगा। ओके, परेशान हो जाते हो ना कि कौन आया क्या सर, कहाँ चले गए सिर्फ। ओके, ओके, सिलेक्शन तो हो। ओके, सिलेक्शन आप सिलेक्शन तो करके दो। ओके, लिखिए, ऑन 17 अक्टूबर 1919, on 17 October 1919, खिलाफत डे वॉज सेलिब्रेटेड। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत डे वॉज सेलिब्रेटेड। prior to this prior to this, in September 1919, all India Khilafat Committee was founded. All India Khilafat Committee was founded. All India Khilafat Committee was founded. On 24th November 1919, on 24th November 1919, Gandhi ji presided the Khilafat Committee. Gandhi ji presided the Khilafat Committee. The Khilafat Committee, and asked all the Hindus to support the Muslim cause. And asked all the Hindus to support the Muslim cause. Support the Muslim cause. On 13 January 1920, on 13 January 1920, a delegation under M.A. Ansari, a delegation under M.A. Ansari met the Viceroy, but British refused to take any action. And on 10th August 1920, when Treaty of Sèvres was implemented, Gandhi ji advised the Khilafat Committee. Gandhi ji advised the Khilafat Committee that there is no option left. There is no option left but to disassociate with the British government. Full stop. Disassociate with the British government.
In September 1920, a special session of Congress was called in Calcutta. A special session of Congress was called in Calcutta. Called in Calcutta under the presidentship of Lal Lajpat Rai. Under the presidentship of Lal Lajpat Rai. In this session, it was decided. In this session, it was decided that Indians would take direct action. Indians would take direct action against the foreign rule. Against the foreign rule. They will boycott the legislative councils. They will boycott the legislative council. Legislative council. The Indian should return the title conferred by the government. The Indian should boycott the legislative councils. The Indians should boycott civil services, army, police. Should boycott civil service, army, police, and other government offices. And other government offices. The people should refrain to pay taxes to the government. The people should refrain to pay taxes to the government. Refrain to pay taxes to the government. Come. Pay taxes to the government. And this started a non-cooperation movement. This started a non-cooperation movement in support of Khilafat issues. Full stop. In the Nagpur session, in the annual Nagpur session of Congress in December 1920, in the annual Nagpur session of Congress in December 1920, which was presided by V. Raghavchari, which was presided by V. Raghavchari, which was presided by V. Raghavchari. The Congress passed a resolution. The Congress passed a resolution
in support of Khilafat movement. The Congress passed the resolution in support of Khilafat movement. Passed the resolution in support of Khilafat movement. The Congress as well as Khilafat committee had agreed upon triple purpose of non-cooperation. The Congress as well as Khilafat committee, ध्यान रखना क्लास, एक चीज ध्यान रखना, ये खिलाफत मूवमेंट बता रहा हूं, अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू नहीं की है। गांधी जी इतने दयालु थे कि खिलाफत मूवमेंट के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया था, पर अभी आजादी के लिए नॉन कॉपरेशन नहीं शुरू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आजादी के लिए मतलब बाद में शुरू किया गया है, 1921 से 1922, एक साल पूरा ऑपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से शुरू हो गया था, पर किसके लिए था? खिलाफत के लिए। जो स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन है वो आपके 1921 में कि खिलाफत, क्योंकि अब उसके पीछे रीजन है कि खिलाफत, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन मेंस का लिखवाएंगे कि खिलाफत आंदोलन जैसे आया था वैसे ही चला गया, क्योंकि जिसके लिए आप सपोर्ट कर रहे थे, जिस गुब्बारे के लिए सपोर्ट कर रहे थे, उसकी हवा तो कमाल अतातुर्क ने निकाल दी थी। ओके, उसकी हवा जिसे इन जनरल कमाल पाशा कहते हैं। कमाल पाशा, कमल पाशा नहीं है, कमाल पाशा है, कमाल पाशा कहते हैं। ये इन्होंने तुर्क आपके एक तरीके से अलग आंदोलन शुरू कर रखा था टर्की में रिफॉर्म्स का, मॉडर्न टर्की का रिफॉर्म्स, कि अब हमें ऑटोमन एम्पायर नहीं चाहिए, ऑटोमन एम्पायर पुराना है, अब हमें डेमोक्रेटिक टर्की चाहिए, रिफॉर्म का चाहिए, मॉडर्न टर्की चाहिए, डेमोक्रेटिक टर्की चाहिए। तो यहां इंडियंस, मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करो, ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करो, पता चला तुर्कियों ने ही, टर्किश पीपल ने ही किसका सपोर्ट कर दिया? कमाल अता तुर्क का सपोर्ट कर दिया, और ऑटोमन एम्पायर को उखाड़ फेंका, उसकी जगह एक तरीके से मॉडर्न टर्की को एस्टेब्लिश कर दिया। अब जब टर्की के लोग ही ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंडियंस क्या खाली झुंझुना बनाते बजाते रहते? तो खिलाफत आंदोलन की हवा निकल गई। जब खिलाफत आंदोलन की हवा निकल गई, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ाए रखने के लिए गांधी जी ने फिर आपके स्वराज का कॉन्सेप्ट लिया कि हम करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। समझ में आया क्लास? तो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के साथ शुरू हुआ, फिर बाद में खिलाफत का आंदोलन धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था। 22 तक कमाल अतातुर्क ने टर्की पे कब्जा कर लिया था, टर्की के लोग कमाल अतातुर्क को सपोर्ट कर रहे थे और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हो चुके थे। तो आप जिसके लोग ही समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सपोज इंडियन कह रहे हैं भाई बाबर आजम को कैप्टन बना रख दो, और पाकिस्तान ही लोग बाबर आजम के अगेंस्ट हैं, तो फिर इंडियन सपोर्ट क्या करेंगे? तो भाई तो कल के मैच के बाद, तो अगर आपने कल रात का मैच देखा होगा, ओके, पुअर कैप्टेंसी ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो यही खिलाफत आंदोलन की हवा क्यों निकली? खिलाफत आंदोलन की हवा निकली बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेवोल्यूशन इन टर्की बाय हुम? कमाल अता तुर्क। इसने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट कर दिया। अब जब टर्की के लोग ही ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट बोलने लग गए, तो हु वर द इंडियंस? तो खिलाफत आंदोलन तो खत्म ही हो गया, सबसाइड हो गया था खिलाफत। इस कारण से खिलाफत आंदोलन, अब जब खिलाफत आंदोलन सबसाइड हो गया, तो इंडियंस का टेम्पो मेंटेन रखने के लिए क्या मूवमेंट शुरू हुई? नॉन कॉपरेशन। ओके, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया रिगार्डिंग चौरी चौरा इंसिडेंट। कल हम एनसीएम करेंगे। ओके, लिख लीजिए क्लास। The Congress as well as Khilafat committee had agreed upon triple purpose of non-cooperation. Triple purpose of non-cooperation. Number one, triple purpose of तीन कारण, triple purpose of non-cooperation. Number one, redressal of Punjab grievances.
नंबर 1, redressal of Punjab grievances. Number 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ खिलाफत रॉन्ग्स। जो आपने टर्की में गलत किया है उसको रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ खिलाफत रॉन्ग्स। एंड नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। एंड नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। तो स्टॉप। द मूवमेंट दो had thoroughly rose the country, movement though thoroughly rose the country, thoroughly rose, ROUSED, the country, it drew little response from British. It drew little response from British. ब्रिटिश ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तुम चिल्लाते रहो, कुछ भी करो, हम कुछ करेंगे ही नहीं। ओके, लिटिल रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रिटिश। कॉन्सिक्वेंटली द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, कॉन्सिक्वेंटली द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस held at Karachi on 8 July 1921, held at Karachi on 8 July 1921, decided that Muslim soldiers in Indian Army to quit their job. Muslim soldiers in Indian Army to quit their job. Their job. Full stop. However, it was the Kemalist revolution. Kemalist. It was the Kemalist revolution. Kemalist revolution. Revolution of Kemal Ataturk of Turkey. Of Kemal Ataturk of Turkey in 1922. Which took the wind out of agitation sail. Which took the wind out of agitation sail and made it redundant. Which took the wind out of agitation sail. Which took the wind out of agitation sail. Wind. Wind. W एक phrase है English का. Which took the wind out of agitation sail. SAIL. SALE मत लिख देना. Which took the wind out of agitation sail and made it redundant. I hope redundant लिख लेंगे. Make it redundant. DAE है. AE. Not DANT. Redundant. Thus, the Khilafat movement came and went very quickly.
खिलाफत मूवमेंट केम एंड वेंट वेरी क्विकली, अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, द खिलाफत मूवमेंट केम एंड वेंट वेरी क्विकली, एक्सप्लेन, मतलब खिलाफत मूवमेंट आई और चली गई, इसे समझाइए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक मेंस का, was a खिलाफत मूवमेंट was खिलाफत मूवमेंट was खिलाफत मूवमेंट a new chapter in Hindu Muslim unity, was खिलाफत मूवमेंट a new chapter on Hindu Muslim unity, or it was a closing chapter, or it was a closing chapter, discuss, was खिलाफत मूवमेंट a new chapter in Hindu Muslim unity, or it was a closing chapter, discuss। ये मीन्स का क्वेश्चन है, ओके आपको आंसर 250 वर्ड में देना। ये नया अध्याय था हिंदू मुस्लिम एकता का, या हिंदू मुस्लिम एकता का आखिरी अध्याय, ओके। और कल हम करेंगे क्लास नॉन कोऑपरेशन, ओके वी विल स्टार्ट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुमारो, ओके वेट फॉर 10 minutes, ओके एंड देन वी विल स्टार्ट विद द आंसर डिस्कस कर सकते हैं, भराओ करो, बताओ करो, हिसाब से नहीं, चलो एक अभी समय है, लिख के देखो, चलो जस्ट, ओके ये तो बहुत अच्छा मौका दिया, मैं आप सबको पेजेस देता हूँ, राइट आंसर ऑन दिस, वी हैव 10 minutes, नाम लिखोगे शीट्स पे और इस पे आंसर लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो थैंक्स टू कोनार्क, ओके आपने ये मौका दिया हमें, वी हैव 10 minutes टाइम, ओके पहले शीट्स पे नाम लिखेंगे, A4 शीट्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, शीट्स पे नाम लिखेंगे, ओके और फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि किसके आंसर्स में क्या चीज, ओके